Hello everyone, welcome to the Needle Magic. In today's tutorial we are going to make this beautiful bag. This is how it looks. So we need 13 granny squares for this bag. So let's not waste time and let's get started. So first we have to make granny squares like this. सबसे पहले हमें इस तरीके की granny squares बनाने हैं और हमें ऐसे 13 granny squares चाहिए. We need 13 granny squares of these type. So I'll show you how to make the granny square and then you can make 13 of them and then I'll show you how to join them and make it into a pretty beautiful bag. So let's get started. So first we have to make a magic circle. So we'll wrap the yarn on our ring finger and little finger and hold it with our thumb, and the other end of the yarn we'll hold it in between our index finger and middle finger. We'll put the needle here under the loop. We'll pull up the yarn from there and we'll chain one. तो इस तरीके से हम एक magic circle बनाएंगे. So our magic circle is done. Now we'll chain 3 करेंगे 1 2 3 और अब हम इस magic circle के अंदर work करेंगे. We'll work in this magic circle now. We'll make 2 double crochet stitches in the magic circle. 2 double crochet stitches करेंगे 1 2 and then we'll chain 1. फिर हम एक chain बनाएंगे 1. फिर हम 3 double crochet stitches करेंगे. We'll make 3 more double crochet stitches in the magic circle. 1 2 3 and then we'll chain 1. फिर हम एक chain बनाएंगे. फिर से हम 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे इसी मैजिक सर्कल में. 1 2 3 and chain 1 and one more set of 3 double crochet stitches. एक बारी फिर से हम 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे इसमें. 1 2 3 एंड चेन 1. एक चेन बनाएंगे. अब हमारे पास 4 सेट्स हैं 3 डबल क्रोशे स्टिचेस के और बीच बीच में हमारे पास चेन 1 है. अब हम इसको टाइटन कर देंगे. We'll tighten this now. We'll pull the yarn tail and tighten our magic circle. Now we have 4 sets of 3 double crochet stitches and in between we have chain 1. Now on the third chain that we made here, we'll go in and we'll make a slip stitch. तो ये जो chain 3 हमने किया था उसका जो third chain होगा उसके top पे जाके हम slip stitch करेंगे. So slip stitch on the third chain, slip stitch on the next stitch here. जो next stitch है उस पे slip stitch करेंगे. Slip stitch onto the next stitch here and slip stitch in the chain 1 space. अभी chain 1 space में हम slip stitch करेंगे और चेन 1 करके फास्टन ऑफ करेंगे. तो इससे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा. और मैंने ये कट कर दिए है यार्न बिकॉज मैं नेक्स्ट कलर यूज करूंगी जिससे कि बहुत अच्छा लुक आता है. तो इसलिए आप अपने सारे स्क्रैप यार्न यूज कर सकते हैं. सो आवर राउंड 1 इज ओवर. लेट्स बिगिन विथ आवर राउंड 2. So for the round 2 I'll be joining my next color in the same space where I fasten the previous color. जहाँ पे मैंने पिछला कलर fasten off किया था उसी same chain 1 space में मैं अपना नया कलर join करने वाली हूँ. So we'll join our next color here. Chain 1 and tighten it first. Then chain 3 1 2 3 and 3 double crochet stitches. इसमें 2 double crochet stitches पहले करेंगे. 2 double crochet stitches first because the chain 3 will count as 1 double crochet stitch. Now chain 2 1 2 and 3 double crochet stitches in the same space. इसी same space में 3 और double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 and 3. तो हमने क्या किया, पहले हमने चेन 3 बनाए, फिर उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाए, फिर चेन 2, फिर 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस उसी एक चेन 1 स्पेस के अंदर. नाउ विल गो इनटू द नेक्स्ट चेन 1 स्पेस. अब हम नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 2, 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे.
So we'll go in the next chain 1 space and we'll make 3 double crochet stitches, chain 2, 1, 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. 1, 2 and 3. Now we'll go into the next chain 1 space. अब हम अगले chain 1 space में जाएंगे और इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ किया है सेम वैसे ही करेंगे. Again in the next chain 1 space we'll make 3 double crochet stitches, chain 2 and 3 double crochet stitches. 3 more double crochet stitches here. 2 and 3. Now we'll go into the last chain 1 space here. ये जो last chain 1 space है यहाँ पे जाएंगे और इसमें भी इसी तरीके से 3 double crochet stitches, chain 2, 3 double crochet stitches बनाएंगे. 3 chain 2 and 3 double crochet stitches. 1, 2 and 3. अब हम ये जो हमने चेन 3 करा था उसका जो थर्ड ऊपर वाली सबसे टॉप वाली चेन है उसके साथ हम स्लिप स्टिच कर देंगे. नाउ स्लिप स्टिच टू द टॉप हियर ऑफ द चेन 3 दैट वी मेड. स्लिप स्टिच टू द नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे, उसके अगली स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे एंड ये चेन 2 स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे. Slip stitch in the chain 2 space and now we can fasten off and ready for our next round. So round 2 is done. Let's start with our round 3. So, as we did in our first round, the place where we fastened off, we have to join our next color in the same space. जैसे हमने यहाँ पे किया था, जहाँ पे हमने fasten off किया था अपना previous color, वहीं पर हमको next color join करना है. तो यहाँ हमने अपना second color fasten off किया, तो हम इसी जगह से इसी chain 2 space में हम अपना next color join करेंगे. chain 1 करके join करेंगे, टाइट कर लेंगे इसको एंड chain 3 एंड 2 डबल क्रोशे स्टिचेस. पहले 2 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे chain 3 के बाद, फिर chain 2, 1, 2 एंड 3 मोर डबल क्रोशे स्टिचेस इन द सेम स्पेस. अब इस जगह पे हम 3 और डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है. हर कॉर्नर पे हमने 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, chain 2, 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करना है. बट जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो पहला डबल क्रोशे स्टिचेस होता है उसके लिए हम यहाँ पे chain 3 कर लेते हैं. नाउ after doing this, the space here in between these two corners we have to make 3 double crochet stitches. तो ये जो 2 corners के बीच में जो space है वहां पे हम 3 double crochet stitches करेंगे. ये 3 डबल क्रोशे स्टिचेस हमने कर ली. अब फिर से हम कॉर्नर पे आ गए हैं तो कॉर्नर पे हमने 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करना है, chain 2 and 3 double crochet stitches. Now we are at the corner, so we'll make 3 double crochet stitches, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. Now in the next space here again we'll make only 3 double crochet stitches. 1, 2, 3. Now again we have reached our corner. फिर से हम कॉर्नर पे आ गए हैं. Now we'll do 3 double crochet stitches, 2, 3, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. इसी same space में 3 और double crochet stitches करेंगे. Now again in this space we'll make 3 double crochet stitches. फिर से इस next space में हम 3 double crochet stitches करेंगे, 2, 3. फिर ये corner आ गया हमारा. Again we have reached our corner, so we'll make 3 double crochet stitches, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. This is a basic granny square and you can make many things out of it. ये next space में again in this next space we'll make 3 double crochet stitches,
अगर आपको ये बेसिक ग्रैनी स्क्वायर बनाना आ जाएगा तो आप इस ऐसे ग्रैनी स्क्वायर्स बना के ज्वाइन करके बहुत कुछ बना सकते हैं। ब्लैंकेट बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। नाउ विल गो इन टू द टॉप ऑफ द चेन 3 एंड मेक अ स्लिप स्टिच। अब ये जो टॉप है एकदम जो हमने चेन 3 बनाया था उसके टॉप पे जाके हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वाले स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे, उसकी नेक्स्ट वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे और चेन 2 स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे। सो वी हैव स्लिप स्टिच on all the stitches here and we have slip stitch in the chain 2 space. Now we'll chain 1 and we'll fasten off. chain 1 करके अब हम fasten off करेंगे और हमारा round 3 होता है complete. So let's begin with our round 4. So for our round 4 again I'm taking another color and I'll be joining it from the place I fasten off with the last color. जहाँ पे मैंने last color से fasten off किया था उसी same color स्पेस में ये नया कलर ज्वाइन करेंगे। चेन 3 1 2 3 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस, 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस करेंगे 1 2, बिकॉज ये जो चेन 3 है ये हमारा पहला डबल क्रोशिया के जैसे ऐड करता है यहाँ पे। सो दिस विल बी काउंटेड एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया स्टिच, द चेन 3 एंड 2 मोर वी हैव मेड। नाउ विल चेन 2 एंड विल मेक 3 मोर डबल क्रोशिया स्टिचेस इन द सेम स्पेस। तो 3 और डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे इसी सेम स्पेस में, 2 एंड 3। अब देखिए, अब ये हमारे एक कॉर्नर है और ये हमारे एक कॉर्नर है, इसके बीच में ये 2 स्पेसेस आ रही हैं। तो इस स्पेस में भी हम 3 डबल क्रोशियास बनाएंगे और इस स्पेस में भी हम 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। सो नाउ यू कैन सी इन बिटवीन आवर कॉर्नर्स वी हैव 2 स्पेसेस नाउ। In the previous round we had 1 space, now in this we have 2 spaces. So here also we have to make 3 double crochet stitches and here also we have to make 3 double crochet stitches. And in the middle we don't need to add any chain. बीच में कोई चेन नहीं करनी है, बस डायरेक्ट 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस करने हैं यहाँ पे and 3 double crochet stitch in the next space, 1 2 3. Now we have reached our corner. फिर से हम अपने कॉर्नर पे आ गए हैं और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस करेंगे। We have reached our corner now. We'll make 3 double crochet stitches, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. तो कॉर्नर हमारा हमेशा ऐसे ही रहेगा। स्टार्टिंग वाला जो रहता है उसमें हम पहले चेन 3 कर लेते हैं, बाकी सारे 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस, चेन 2, 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस, हर कॉर्नर ऐसा ही रहेगा। अब फिर से यहाँ पे देखिए 2 स्पेसेस हैं, हर एक स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस करेंगे। In this space we'll make 3 double crochet stitches. In the next space again we'll make 3 double crochet stitches, 1 2 and 3. Now in the corner we'll make 3 double crochet stitches, chain 2, 3 double crochet stitches, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. Now again we have reached the sides. Now sides we have 2 spaces. अब sides पे फिर हमारे पास 2 spaces हैं, हम दोनों में 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे, 2 and 3. नेक्स्ट स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया स्टिच, 1 2 and 3. Now again we have reached our corner. फिर से हम कॉर्नर पे पहुंच गए हैं। ये चेन 2 स्पेस में हम अपना कॉर्नर बनाएंगे। We'll make 3 double crochet stitches, chain 2 and 3 double crochet stitches in the same chain 2 space, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space, 2 and 3. Now again we have reached the sides. We have to make 3 double crochet stitches here. फिर से हम साइड वाली स्पेसेस में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे। नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे, 1 2 3. एंड इस चेन 3 के टॉप वाले चेन से हम इसे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। सो ज्वाइन
with a slip stitch on the top of the chain 3 that we made. The third chain will go up, make a slip stitch, go into the next stitch. Next stitch में जाएंगे, slip stitch करेंगे, go into the next stitch and make a slip stitch, and go into the chain 2 space and make a slip stitch. And now chain 1 and fasten off. chain 1 करके हम इसे कट कर देंगे. तो हमारा ये राउंड भी होता है कंप्लीट. अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट राउंड. अब ये जो मेरा राउंड है ये मेरा लास्ट राउंड है इस ग्रैनी स्क्वायर का, क्योंकि मैं इतने ही साइज के मुझे ग्रैनी स्क्वायर चाहिए. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रैनी स्क्वायर बड़ा हो, आपका बैग बड़ा हो, या आप जो भी बना रहे हैं वो आपको बड़ा चाहिए, तो आप रोज ऐड कर सकते हैं. बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी लास्ट कलर होगी वो सेम कलर होना चाहिए. अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक यूज़ किया है, आई डोंट नो वाई कैमरा में ब्लू शो कर रहा है, बट ये ब्लैक मैंने यूज़ किया. तो मैंने हर एक ग्रैनी स्क्वायर का जो लास्ट वाला राउंड है वो मैंने ब्लैक से ही किया है, ताकि जब मैं ज्वाइन करूँगी तो मुझे मुश्किल नहीं होगी. क्योंकि अगर मेरे अलग अलग कलर्स के होंगे, लास्ट वाला राउंड मेरा अलग अलग कलर का होगा, तो मुझे ज्वाइन करने में मुश्किल होगी. तो इसलिए मैंने सबका जो लास्ट वाला राउंड है वो एक ही कलर से रखा है. So how many ever rounds you can add on and make it as big as you want, but make sure the last round of the granny square should be of the same color. All the granny square, the last round should be of the same color. So I'll be doing it with black here, as I have all my last round with black. तो मैं black से इसको वहीं पे join करूँगी जहाँ पे मैंने fasten off किया है अपना previous color. तो we'll join it here. Chain 1 and tighten it, then chain 3, 1 2 3, 2 double crochet stitches, 1 2, chain 2, 1 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. तो ये मैंने यहाँ पे chain 3 पहले किया स्टार्टिंग में, फिर 2 double crochet stitches बनाए, फिर chain 2 और 3 और double crochet stitches उसी एक chain 2 space में. नाउ देखिए, अब इस राउंड में हमारे पास ये 1 2 3 स्पेसेस हैं. नाउ वी हैव 3 स्पेसेस हियर इन बिटवीन दीज 3 double crochet stitches. We have 3 space, 1 here, 1 here, 1 here. So in all these 3 spaces we'll be making 3 double crochet stitches. तो इन्हीं spaces में जो 3 spaces हैं इनमें हम 3 double crochet stitches बनाएंगे. इसी तरीके से जितना आप बड़ा बनाएंगे आपके ये sides increase होते जाएंगे. कॉर्नर तो सेम करना है और साइड्स में जैसे 3 double crochet stitches हर एक साइड में करना है. So in the next space again 3 double crochet stitches. Make sure you're not skipping any space. अब ध्यान रखिएगा कि कोई भी स्पेस स्किप ना हो जाए, क्योंकि अगर ये वाली स्पेस स्किप हो जाएगी तो ये शेप इसकी स्क्वायर में नहीं आएगी. फिर ये नेक्स्ट स्पेस में फिर से हम 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. इन द नेक्स्ट स्पेस अगेन वी आर मेकिंग 3 डबल क्रोशे स्टिचेस. एंड नाउ वी हैव रीच्ड अ कॉर्नर. फिर हम कॉर्नर पे आ गए और कॉर्नर पे हमने कैसे करना है 3 डबल क्रोशे स्टिचेस. वी हैव टू मेक 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, 2 3 and then we have to chain 2. फिर chain 2 करेंगे 1 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. इसी same space में 3 और double crochet stitches बनाएंगे 1 2 and 3. Now फिर से हम sides पे आ गए. Now we have reached our sides. So in these spaces again we have to make 3 double crochet stitches, 1 2 and 3. Then in the next space again 1 2 3. Again in the next space, फिर से next space में 3 double crochet stitches, 1 2 3. Now we have reached our corner. फिर से हम corner पे पहुंच गए and corner पे हम 3 double crochet stitches, 1 2 3, chain 2 1 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. इसी same space में हम 3 और double crochet stitches करेंगे. फिर से हम sides पे आ गए. Now again we have reached our sides.
So 3 double crochet stitches in these spaces in between the 3 double crochet stitches. नेक्स्ट स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे, 1 2 एंड 3. नेक्स्ट स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, सॉरी, ओके, 1 2 3. नाउ कॉर्नर पे आ गए हैं हम. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस, chain 2 and 3 more double crochet stitches in the same space. 1 2 3. Now in the side, 3 double crochet stitches in each space. 1 2 3. In the next space, 1 2 3. In the next space, 1 2 3. Now join it with a slip stitch on the third chain. तो जो थर्ड चेन थी इस पे हम जाके स्लिप स्टिच करेंगे. स्लिप स्टिच इन द नेक्स्ट स्टिच and slip stitch in the chain 2 space. chain 2 space में हमने slip stitch कर दी. Now we'll chain 1 and fasten off. ये हमारा ग्रैनी स्क्वायर रेडी हो गया है. इसी तरीके से आपने 13 ग्रैनी स्क्वायर्स बनाने हैं. You have to make 13 of these and as big as you want you can make them. Just make sure the last round you're making every granny square with the same color and you can use up all your scrap yarns. It's a nice project. Now I'll show you how to join all these. You can before joining, what you can do is you can weave in these ends because we have used different colors. तो ये जो जितने भी हैं इसको weave in कर देंगे tapestry needle की मदद से ताकि ये neat हो जाए. And then I'll show you how to join these and make them into a beautiful bag. So मैंने weave in कर दी हैं सारे ends. तो ये देखिए दोनों साइड से neat and tidy हो गया. ये मैं दिखा दूंगी मैंने कैसे किए हैं. I'll show you how I have weaved in my ends and some ends I've just knotted them and cut the excess. Now this is the main from which we made the magic circle. ये जो center में है ये main है जिससे हमने magic circle बनाया था और जहाँ से हमारा ये square हमने start किया था. तो ये बहुत important है कि इसको आप बहुत securely weave in करें ताकि ये खुले नहीं. तो इसमें tapestry needle में आप अपना ये डाल के, it's very important to weave this in really careful because this is the main center part of the square from where we started. So I'll go in like this and then इसी तरफ से वापस जाएंगे. So I'm just going in a couple stitches again, the same stitches where I went. Now I'm just going in couple of more stitches here. थोड़ी और stitches के बीच में जा रही हूँ and इसको अच्छे से tight करना है ताकि center से खुलना नहीं चाहिए. Now I'll cut the excess yarn and this is done. Now rest here you can see when I have attached my new color, the place where I fastened off the previous color and attached the new color, I've worked on this the threads in some stitches. So now what I'll do is I'll just tie couple of knots. अभी जो दो yarn है, एक तो वो जो हमने fasten off की थी और दूसरी जो हमने नया कलर ऐड किया था, तो वो एक ही प्लेस पे रहेगा. तो उसमें मैंने देखिए मैंने नॉट्स बनाई और अब इसको मैं जो एक्स्ट्रा है ये वाली इसको मैं कट कर दूंगी. बस इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे. यहाँ पे भी वो सेम प्रोसीजर है क्योंकि यहाँ पे भी हमने अब यहाँ पे भी कलर चेंज किया था ना. तो एक फास्टन ऑफ वाली कलर की यान है और एक जहाँ पे हमने ज्वाइन किया था उसकी कलर की यान है. तो ये दोनों भी हम ऐसे नॉट बांध देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे. सेम हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे. और ये जो है ये मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है.
इसको थोड़े स्टिचेस के अंदर मुझे डालना है, बट वो थ्रेड छोटी है, तो व्हाट आई लाइक टू डू इज फर्स्ट आई put my needle in the place where I want my thread to pass and then I put the thread through the needle. अब जब भी मेरी यान या थ्रेड छोटी होती है तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं नीडल डाल देती हूँ वहाँ पे जहाँ पे मुझे चाहिए वो कि वो अंदर जाए, और फिर मैं बाद में नीडल में वो यान पास करती हूँ। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूँगी, यहाँ पे भी नॉट्स बांधेंगे। So I'll just tie a couple of knots here and make sure that when you're sewing all the granny squares, make sure that you have put all the front sides together and back sides together, otherwise it will not give a nice finished look. आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो बैक पोर्शन है वो अंदर की तरफ आना चाहिए और जो फ्रंट पोर्शन है वो बाहर की तरफ बैग में दिखना चाहिए। तो ये मैं एक्स्ट्रा वाली कट कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने सारे अपने ग्रैनी स्क्वायर्स के जो एक्स्ट्रा यार्न टेल्स हैं उसको वीव इन कर देना है। ये देखिए, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, बट एक्चुअली अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये सेम लगता है, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा जहाँ पे ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। सो दिस इज हाउ योर लेआउट शुड बी। आपका लेआउट इसी तरीके से होना चाहिए। ये देखिए, पहले 2 स्क्वायर्स रखेंगे, देन 3 स्क्वायर्स, देन 2 स्क्वायर्स एंड देन 1 स्क्वायर। तो ये पहला लेआउट हमारा इस तरीके से होगा। अब इन सबको हमने स्टिच कर देना है। ये देखिए, ये जो पार्ट्स ये टच हो रहे हैं, ये या यहाँ पे ये सारे ये तीनों के तीनों इन तीनों के साथ जॉइन होंगे एंड ये दोनों ऐसे जॉइन होंगे। सो ये आपका लेआउट इस तरीके से होना चाहिए कि आपने डायमंड शेप में इसको ऐसे रखना है, पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे। आई होप आपको कैमरे में सही से दिख रहा है। So this is how your layout should be. First 2 squares, then 3, then 2, then 1. And I've put the squares in the diamond shape. And all the front side is on top. तो ये जो front side है वो मैंने top पे रखी है। और इसको अब मैं क्या करूँगी, ये stitch marker की मदद से I'll join the corners, ताकि ये जो मेरे squares हैं ये इनकी ये जो shape मैंने ऐसे रखी है ये ख़राब ना हो। तो I'll just join them using stitch marker. These 4 corners, like these 4 corners, I'll put it in the stitch marker here. आप अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप थोड़ी सी यार्न लेके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव अ स्टिच मार्कर, जस्ट यूज अ लिटिल बिट ऑफ यार्न and then join them together, because it's very important. If your layout is not perfect, if the layout is not correct, then the bag won't hold its shape properly. तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। तो ये बहुत ध्यान में रखिएगा, पहले सारे ज्वाइन कर लीजिए कॉर्नर्स वगैरह, और जब कॉर्नर्स को आप ऐसे स्टिच मार्कर से अटैच कर देंगे उसके बाद आप इसको सिल देना। और या तो आप टेपेस्ट्री नीडल की मदद से सिल सकते हैं या फिर आप क्रोशे हुक यूज़ करके स्लिप स्टिच की मदद से भी इनको स्टिच कर सकते हैं। Either you can stitch it with the slip stitch method, or you can use a tapestry needle and yarn and just sew it by using one sides of these stitches. You know, one side of these stitches, you can just sew them together. तो ये देखिए, मैंने सारे कॉर्नर्स पे स्टिच मार्कर लगा के इसको अटैच कर दिया है। अब मैं इसको सिल दूंगी। I've attached it with the stitch marker, and be very careful when you're stitching it. You have to stitch it from the back side, wrong side. तो इसको रॉन्ग साइड पे स्टिच करेंगे, नहीं तो फ्रंट साइड से अगर आप स्टिच करेंगे तो वो सारा दिखेगा। सो आपने इसको, अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और अब हम इसको उल्टा करके ऐसे ज्वाइन करके इसको स्टिच कर लेंगे। इधर ये एंड देन ये वाला पार्ट। ये देखिए, मैंने इन सबको आपस में जोड़ लिया है, सिल दिया है आपस में। सो आई हैव sewn all these pieces together, and now this is the right side and this is the wrong side. So now I'll be keeping the right side on top and the rest 5 granny squares. अब मैं जो रॉन्ग साइड है उसको, जो राइट साइड है उसको ऐसे सामने की तरफ रख रही हूँ, और ये पीछे जो है ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है, ये सही वाली साइड है, इसको मैंने इस तरीके से रखा है। और अब जो बाकी के 5 ग्रैनी स्क्वायर्स बचे हैं, अब इसमें
जो राइट साइड है उसको हम उल्टा करके रखेंगे. सो नाउ वी हैव टू प्लेस द राइट साइड towards the right side like this. So on top here will be the wrong and this will be the right. So right and right facing each other. जो right sides है दोनों एक दूसरे को face करने चाहिए, उस तरीके से हम रखेंगे. एक रखेंगे हम center में, one will place here, one will place here, one will place here, one here and one here. So we have placed 5 granny squares like this, 2 here and 1 here. Now we have to fold this like this. We have to fold this way. इसको ऐसे fold करेंगे, नीचे से ऐसे fold करेंगे and इसको ऐसे fold करेंगे. तो ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा, ये बैक की शेप आ गई है. As you can see, it's already it has the back shape. Now what we have to do is, now we have to sew these parts like this and like this and this. तो ये सारा हम सिल लेंगे. कैसे सिलेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा पोर्शन स्टिच करेंगे, ये फिर यहाँ से ये पूरा पोर्शन स्टिच करेंगे और फिर लास्ट में ये स्टिच करेंगे. तो इन दोनों को आपस में स्टिच करना है आपने ऐसे एंड देन ऐसे एंड देन इसको यहाँ से स्टिच करेंगे, ये ऐसे पकड़ के यहाँ से स्टिच करेंगे, यहाँ से ऐसे पकड़ के स्टिच करेंगे एंड ऐसे. तो ये सारा जब आप स्टिच करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट हमने क्या करना है. तो जस्ट सीव ऑल दीज पार्ट्स टुगेदर एंड देन आई विल शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. और एक बार जब आप ये वाले पोर्शंस को सिल देंगे तो ध्यान से ये भी आपने सिलना है यहाँ से एंड देन ये वाला पोर्शन एंड देन ये टॉप का ये वाला पोर्शन. ये वाला पोर्शन हम नहीं स्टिच करेंगे क्योंकि ये ओपनिंग होगी बैक की. सो दिस पोर्शन विल नॉट बी सोइंग दिस पोर्शन. रेस्ट दिस साइड वन, दिस साइड एंड दिस साइड शुड बी सोन. तो ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है. I've stitched this, I've sewn it with the tapestry needle and yarn and I've left this portion open. Okay, rest all I have sewn the granny squares. Now this is the wrong side. ये हमारी wrong side है. तो ये बस देखिए ये पोर्शन खुला रखा है हमने ताकि ये हमारा बैक का ओपनिंग वाला साइड होगा. ये वाला जो साइड है ये ओपन रहेगा. बाकी सारे एक दूसरे से ग्रैनी स्क्वायर्स को हमने स्टिच कर दिया. ठीक है, जैसे सुई धागे से सिलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसे सिल दिया है. अभी रॉन्ग साइड है, दिस इज द रॉन्ग साइड, सो वील शिफ्ट इट एंड ब्रिंग द राइट साइड आउट. सी, दिस इज द राइट साइड. ये हमारी राइट साइड है. सो बेसिकली द बैग इज रेडी. नाउ वी हैव टू जस्ट मेक द स्ट्रैप्स. अब हमने स्ट्रैप्स बनाने हैं. हमारा बैग रेडी है तो मैं बताऊंगी अब स्ट्रैप्स कैसे बनाने हैं. सो टू मेक द स्ट्रैप्स ऑफ द बैग, स्ट्रैप्स बनाने के लिए वील मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट. सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे एंड वील चेन 9. अब हम 9 चेन्स बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. अगर आपको चाहिए कि आपका स्ट्रैप ज़्यादा चौड़ा हो तो आप ये स्टिचेस थोड़ी सी इंक्रीज भी कर सकते हैं. इफ यू वांट योर स्ट्रैप टू बी ब्रॉडर यू कैन जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टिचेस, बट फॉर मी आई वांटेड इट दिस थिक, सो आई एम जस्ट डूइंग 9 चेन्स. एंड नाउ गो इनटू द सेकंड चेन फ्रॉम द हुक. ये जो सेकंड चेन है हुक से, इसमें जाएंगे हम एंड वील मेक अ सिंगल क्रोशे स्टिच. देन वील गो इनटू द नेक्स्ट में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. सो वी हैव टू बेसिकली मेक 1 सिंगल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग चेन्स. इसी तरीके से हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच हर एक चेन में करते रहेंगे. और इस तरीके के हमने 2 स्ट्रैप्स बनाने हैं. वी हैव टू मेक two of these straps. So the same way like I'm showing you to make 1, you have to make 2 of the same type. After you reach the end, जब आप लास्ट का सिंगल क्रोशे स्टिच कर लोगे उसके बाद then you have to chain 1. You'll chain 1, turn your work.
अपना वर्क टर्न कीजिए। और अब हमने सिर्फ बैक लूप में वर्क करना है। नाउ वी हैव टू वर्क ओनली इन द बैक लूप्स। सो विल गो इन द बैक लूप, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2. So sorry. Now we'll go into the next, and again we'll do a single crochet stitch, and we are working only in the back loops. हम सिर्फ बैक लूप्स में वर्क कर रहे हैं। एक एक सिंगल क्रोशा स्टिच हम हर एक बैक लूप में करते जाएंगे। So we'll just be doing one single crochet stitch in each of these following stitches only in the back loop. Because when we do it in the back loop, we get a nice texture. एक बहुत अच्छा सा texture आता है। Then again chain 1, turn your work, and now again in the back loop we'll be doing single crochet stitch. And remember, the chain 1 will not count as any stitch. It's only the turning chain. तो जो chain 1 हम बना रहे हैं वो count नहीं होता है, वो बस turning chain है। तो जो हमारी last stitch होती है, हमने उसी stitch से अपना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, मैंने बैक लूप में 1 सिंगल क्रोशा स्टिच किया है। फिर से मैं चेन 1 करूंगी, अपना वर्क टर्न करूंगी, और फिर से ये जो लास्ट स्टिच थी उसके बैक लूप से हम सिंगल क्रोशा स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। सो वी हैव टू जस्ट कीप डूइंग 1 सिंगल क्रोशा स्टिच इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग बैक लूप्स, एंड देन वील चेन 1, टर्न आवर वर्क, एंड देन स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट स्टिच अगेन, and keep doing 1 single crochet stitch in each of these following back loops. And once you reach the desired length of your strap, how long you want it to be, you can just chain 1 and fasten off. तो इसी तरीके से आपने इसको जितना लॉन्ग आपको चाहिए आप उतना लॉन्ग बना सकते हैं, और उसके बाद चेन 1 करके इसे हम फासन ऑफ कर देंगे। तो मैं इसको लॉन्ग बना लेती हूँ पहले, फिर मैं दिखाती हूँ क्या करना है। आपको बस इसी तरीके से रिपीट करते जाना है। सो आई हैव मेड इट एज लॉन्ग एज आई वांटेड। मैंने देखिए इतना लंबा बना दिया, इसको जितना लॉन्ग मुझे चाहिए था। एंड अब मैं इसको फासन ऑफ कर दूंगी। जस्ट चेन 1 एंड फासन ऑफ, लीविंग अ लॉन्ग टेल। थोड़ी सी लंबी टेल छोड़ दीजिएगा यान की, क्योंकि इसी की मदद से हम इसे बैग से सिल देंगे। एंड यू हैव टू मेक 2 ऑफ दीज। तो देखिए, एंड मेक श्योर यू मेजर बोथ द स्ट्रैप्स बिकॉज दे हैव टू बी ऑफ द सेम साइज। ठीक है, या तो आप अपने रोज का काउंट रखिएगा कि जितनी रोज आपने एक स्ट्रैप के लिए की है, जितनी रोज आपने एक स्ट्रैप में यूज की है उतनी ही दूसरी में भी होनी चाहिए। अदरवाइज आप जस्ट इसको ऐसे रख के मेजर कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब ये 2 स्ट्रैप्स रेडी होने के बाद हम इसको बैग से सिल देंगे। तो ये हमारा बैग का टॉप पोर्शन है। दिस इज द टॉप पोर्शन ऑफ द बैग। सो 1 strap, we'll take 1 strap first and we'll stitch it here like this, and the same strap will go in the same side here in the next granny square, and similarly we'll sew the next strap back side. So here I'll take a tapestry needle। ये tapestry needle की मदद से इसको मैं यहाँ पे सिल दूंगी। ओके, इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। सो जस्ट बी केयरफुल एंड stitched it, just stitch it very carefully and so that it's secure enough, and when you use it the strap shouldn't come out. तो इसको पक्की तरह से आपने सिलना है ताकि जब आप ये बैग यूज करेंगे तो ये स्ट्रैप टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए कि निकल जाए। तो इसको अच्छी तरह से हम इसको एकदम सिक्योर तरीके से इसको स्टिच कर देंगे। मैंने इसे अच्छे से स्टिच कर दिया। आई हैव स्टिच्ड इट सिक्योरली एंड नाउ फ्रॉम द बैक साइड आई जस्ट मेक अ कपल ऑफ नॉट्स so that the stitches are secured enough। बस 1-2 नॉट्स बना दूंगी पीछे ताकि ये सिक्योर रहे एकदम और खुले नहीं। और फिर हम नेक्स्ट साइड, इस स्ट्रैप को नेक्स्ट साइड पे स्टिच कर देंगे। ओके, अब ये यहाँ से मैं कट कर देती हूँ इसे। अब ये एक हमारा हो गया। अब इसी सेम ये फ्रंट साइड का
जो दूसरा सिरा है, जो दूसरा पार्ट है, दूसरा ग्रैनी स्क्वायर है, इस पे हम इसे ऐसे लगा देंगे. So the same front side, the other granny square, we'll put the strap there, here. So we'll stitch it here. यहाँ पे हम इसे stitch कर देंगे. तो मैंने ये एक side पे ये stitch कर दिया है. I've stitched it on one side. Now I'll turn my bag, and the back side of the bag, you can say either sides because you can use it anyways. So now we'll take the other strap and we'll put one side here and the other side here and stitch it. तो मैं इसी तरीके से, जैसे मैंने पहला वहाँ दूसरा साइड किया था, वैसे उसी तरीके से यहाँ पे ये लगा के, ये दूसरी साइड यहाँ पे लगा के, इन दोनों को भी इसी तरीके से सिल दूंगी. So ये देखिए हमारा बैग रेडी हो गया है. Our bag is ready now. This is how it looks. See, from inside. And this is from outside. So I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching, and do subscribe to my channel, and don't forget to click on the bell icon as you'll be notified whenever I upload my new video. So stay happy, keep crocheting, be safe, bye bye.